اگر تو معبود ہے تو میں تجھے مار رہا ہوں، تو اپنے آپ کو میرے اس پتھر سے بچا لے۔ اللہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے، ان کی شان کیا ہے؟ آپ زمانہ جاہلیت میں کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، جبکہ اس زمانے میں لوگ شراب کو پانی کی جگہ استعمال کرتے تھے، پانی کی طرح پیتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے آپ کے بچپن کا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ کو پکڑا اور لے کر کے گئے بت خانے میں، اور بت خانے میں لے جا کر کے کہا، بیٹے یہ بت تمہارے معبود ہیں، تم ان کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرو۔ اور آپ کے باپ پھر کسی کام سے باہر آ گئے، بت خانے میں آپ کو چھوڑا اور آپ باہر آ گئے۔ صدیق اکبر نے جب ان بتوں کو دیکھا تو بتوں کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں، بت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے، لیکن بت نے حرکت نہیں کی، ذرہ برابر بھی اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں اس سے کھانا مانگ رہا ہوں، یہ کیسا معبود ہے کہ مجھے کھانا نہیں دے رہا ہے، میں اس سے کپڑا مانگ رہا ہوں، یہ کیسا معبود ہے مجھے کپڑا نہیں دے رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے کہتے ہیں، اگر تو معبود ہے تو میں تجھے مار رہا ہوں، تو اپنے آپ کو میرے اس پتھر سے بچا لے۔ اللہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے پوری طاقت سے اس پتھر کو مارا، بت جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ کے والد فوراً واپس آئے تو آ کر کے دیکھا کہ بت زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں، اے بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آپ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر کے آپ کی والدہ کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آگے چل کر کے کیا کریں گے، ایسا ایسا واقعہ آج پیش آیا ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے، اے میرے شوہر انعامدار، ان کو آپ ان کے حالات پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جن کے ساتھی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اور کیسے ساتھی؟ کیسے؟ کہ جب تک مکہ میں رہے تو ساتھ ساتھ رہے، جب ہجرت میں رہے تو ساتھ ساتھ رہے، جب مدینہ میں آئے تو ساتھ ساتھ رہے، اور جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد میں آج بھی مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت کے روز میرے آقا کی حدیث بتاتی ہے کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ صدیق اکبر اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اٹھیں گے۔ فرماتے صدیق انتا صاحبی فی الغار و انتا صاحبی علی الحوض، تم غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ رہو گے، اور جب حوض کوثر میں نبی کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ کیا مرتبہ ہے! آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم فرمایا کہ اے میرے جانثارو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم خود بیان فرماتے ہیں، اتفاق سے اس وقت میرے پاس میں مال بہت زیادہ تھا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں کسی دن آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ میرے لیے آج کا دن ہوگا، آج میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے میرے پاس میں مال بہت زیادہ تھا، میں نے اس مال کو دو جگہ تقسیم کیا، یعنی مال کو دو
हिस्से किया, घर का सारा साजो सामान। अब घर का आधा माल भी अल्लाह की राह में खर्च कर देना कोई छोटी बात नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, वो तो उमर फारूक आज़म आशिक रसूल हैं जिन्होंने अपने घर के माल को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा नबी की बारगाह में लेकर के पहुंचे और एक हिस्सा जो है अपने घर पर पे छोड़ दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई आम बात नहीं है आधा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, क्योंकि अगर आज इस जमाने में हम अपनी बस्तियों का हाल देखें और आज के इस मुआशरे को देखें तो क्या देखा जाता है। जब मस्जिद के अंदर जुमे के लिए हम 8 दिन में जाते हैं और गोलक हमारे सामने आती है, 8 दिन में 10 रुपए डालने का वहाँ पे मामला होता है, तो अक्सर नौजवानों को और मैंने बुजुर्गों को ऐसा देखा है कि जो अपनी बगले झाँकते हैं, दावा तो नबी से इश्क का है, दावा तो नबी से प्यार का है, दावा तो नबी से अकीदत का है, दावा तो नबी से मोहब्बत का है, लेकिन ऐ नौजवान जरा ये तो बता, तू हजारों रुपए एक हफ्ते में बीड़ी सिगरेट गुटके में लुटा दिया करता है, लेकिन आज तू मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के लिए आया है तो ज्यादा पैसों का सवाल नहीं है, बल्कि सिर्फ 10 रुपए तुझे गोलक में डालना है, लेकिन वो तेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अगर देखा जाए एक गुटका खाने वाला दिन भर में अगर 4 गुटके खाता है तो पूरे हफ्ते में वो 140 रुपए के गुटके खा जाया करता है, लेकिन एक हफ्ते में 10 रुपए अल्लाह के घर के लिए देने के लिए वो 10 बार सोचा करता है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अगर सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाते हो, अगर उमर फारूक आजम का नारा लगाते हो, अगर इमाम हुसैन का नारा लगाते हो, करबला वालों से मोहब्बत करते हो, तो अपनी मस्जिदों का भी ख्याल करो, अपने मदरसों का भी ख्याल करो और अपने इमामों का भी ख्याल करो, क्योंकि अगर आज के वक्त में दीन जिंदा है तो इन्हीं इमामों के जरिए से जिंदा है, इन्हीं उलमाए किराम के जरिए से जिंदा है। जब आज स्टेशन पे एक हाफिज या मौलवी ताली लगा करके खड़ा होता है तो मेरे प्यारे अजीजों हजाचा होता है और उन तमाम को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुखालिफ क्या समझते हैं जो अपने जी में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्याल करो, अपनी दौलत हम इधर उधर बहुत लुटाते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च किया करो। इंशाअल्लाह यही हमारी और आपकी बख्शिश का जरिया बन सकती है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक नेकी को कबूल फरमा ले और हमें बख्श दे। लेकिन बस बात आ गई है, एक बात मैं और अर्ज कर दूं, हर छोटी से छोटी नेकी ये सोच करके किया करो, हो सकता है अल्लाह ताला इस पे राजी हो जाए, और हर छोटे से छोटे गुनाह को ये सोच करके छोड़ दिया करो कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाह पे मेरी पकड़ हो जाए, और अल्लाह ताला की पकड़ वो है कि जिससे बगैर उसके छुड़ाए कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो हर छोटे से छोटे गुनाह से ये सोच करके बचा करो। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अपने अखलाक बेहतर करो, अपने किरदार बेहतर करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर फारूक आज़म ने अपने माल के 2 हिस्से किए, आधा माल अपने घर पे छोड़ा, आधा लेकर के नबी की बारगाह में पहुंच गए। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचे तो हदीस पाक के अल्फाज मेरे आका फरमाते हैं, माँ अब कई तुले आहलिक, माँ अब कई तले आहलिक, ऐ उमर तुम अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ करके आए हो। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आधा मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत सिद्दीक़ अकबर के इश्क को देखो, आपने अपने घर का सारा साजो सामान इकट्ठा किया, आपके पास में बाज़ाहिर माल ज्यादा नहीं था, लेकिन आप इश्क देखिए नबी से कैसा है, अल्लाह से कैसी मोहब्बत है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने तमाम माल को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि आपने खाना पकाने के बर्तन को भी ले लिया, पहनने के कपड़ों को भी ले लिया, और अपने बदन पे आपने एक फटा पुराना कंबल डाल लिया, और बटन की जगह आपने उसमें जो है बबूल का कांटा लगा लिया। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा आशिक रसूल है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, ये वही आशिक रसूल है जिसका दबदबा मक्का के अंदर था, ये वही आशिक रसूल है मक्का के अंदर जिसकी गिनती बड़े लोगों में आती थी, जिसकी गिनती अमीरों में होती थी, लेकिन आज नबी के इश्क में अपने बदन पर फटा पुराना
कंबल डाल करके और बटन की जगह बबूल का कांटा लगा करके अजीजान गिरामी बकार यहाँ तक के कपड़ा सीने की सुई को भी आपने उस सामान में दाखिल कर लिया था और घर का कुल साजो सामान लेकर के अब नबी की बारगाह में चले हैं। जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला नबी की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका करीम ने देखा अपने आशिक को, फरमाते हैं माँ अब कई तले अहलिक, ऐ सिद्दीक अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर वालों के लिए कोई साजो सामान नहीं छोड़ा है, मैंने माल नहीं छोड़ा है, मैंने दौलत नहीं छोड़ी है, बल्कि जो मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ा है। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अब कैतुल्लाह व रसूला, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ करके आया हूँ। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मोहब्बत से कहे, मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कहने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब इमाम हुसैन के नाम पर और अल्लाह वालों के नाम पर इस महफिल में आए हो तो मेरे प्यारे अजीजों, अपने दिल में जो हमारे दिलों में ईमान की दौलत है, इस जज्बे को बेदार करके लेकर के जाना। अजीजान गिरामी बकार, इधर हजरत सिद्दीक अकबर आए, उधर सिदरा से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि सिदरा से फौरन जाओ, सिदरा को छोड़ दो और मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और उसी लिबास में जाना जिस लिबास में आज मेरे महबूब का महबूब नजर आ रहा है। अल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नबी की बारगाह में, वही लिबास है आपके जिस्म पर जो सिद्दीक अकबर का लिबास है, यानी फटा पुराना कंबल है और बटन की जगह बबूल का कांटा लगा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ आखिर आज इस लिबास में आने का मकसद क्या है, इस लिबास में आने की वजह क्या है? तो मेरे प्यारे अजीजों, जुमले का इस्तेमाल करना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, जब से आपके महबूब ने इस लिबास को पहना है तो अल्लाह ताला ने मुझे ही नहीं बल्कि आसमान के सारे फरिश्तों को ये हुक्म फरमा दिया है कि सारे फरिश्ते उसी लिबास को पहन ले जिस लिबास में मेरे महबूब का महबूब नजर आ रहा है। शान है, ये है सिद्दीक अकबर।